and welcome to Shriram's IAS. Today you all might have gone through the numbers talking about India becoming the fourth largest economy. So let's understand that how India actually is becoming the fourth largest economy by the financial year 2025. As per the IMF projections, we all are aware of this thing that India has surpassed Japan and now India is at the fourth number in terms of calculating its GDP in market exchange rate terms. Let's understand what are the nuances and what are the key methodologies to remember and understand GDP और इसकी implications क्या हो सकती है, GDP हमें एक्चुअल में कितना ग्रोथ बताता है, जीडीपी का कंपैरिजन और जीडीपी की मेथोडोलॉजी किस लिए काम आती है। यूपीएससी ने इस पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं आज तक, प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन आया है, एज द क्वेश्चन वाज फ्रॉम पर कैपिटा इनकम आल्सो, देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी आल्सो, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द 2015 रिफॉर्म्स जो हमने लाए थे 2015 में जीडीपी कैलकुलेशंस में, दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस. So now let's keep all of that in mind and let's start with a fresh mind so that we understand that what all lies behind these numbers which IMF projections have talked about. Now let's begin with the GDP thing. GDP basically क्या होता है? It is basically the final value of all the goods and services which are produced in an economy in one financial year. अब जीडीपी का ये पूरा कैलकुलेशन जो मार्केट वैल्यू होता है आज की डेट में हमारे यहाँ एनएसओ जो नंबर्स देता है हमें, दे आर बेसिकली डिराइव्ड आउट ऑफ अ नंबर, दैट इज जो हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मेथड. उसके हिसाब से हमारे जीडीपी के नंबर्स आते हैं. बट नाउ हमारे जीडीपी के नंबर्स रुपीज में आते हैं, दैट आर जीडीपी इज दिस मच एंड दिस मच बिलियन रुपीज में हमारा जीडीपी कैलकुलेट होगा. टोटल जो फाइनल वैल्यू है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का वो फाइनल वैल्यू आ जाएगा. बट रिमेंबर, जीडीपी क्यों हम लेते हैं एज अ स्टैटिस्टिकल नंबर? बिकॉज इट इज यूज्ड टू कंपेयर इकोनॉमीज एट इंटरनेशनल लेवल. रुपी इज येट टू बी एन इंटरनेशनल करेंसी. Therefore, in order to make this international comparison at a level, we convert these domestic currencies into dollar. So usually what we do is हम डॉलर में कन्वर्जन करने के बाद सब कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी किस नंबर पे है. इसी कंपैरिजन, इस कन्वर्जन के बाद जो कंपैरिजन आईएमएफ ने किया उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 4186 पॉइंट, ठीक है, IMF has projected that India's GDP is likely to be $4,187 by financial year 2025. इतने बिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी होने वाला है. Clear? That is 4.18 roughly. Now understand, which is marginally higher than Japan's. Japan का it is 4.18, that is also 4.18, but that is 86, this is 87. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस है जापान और इंडिया के नंबर्स में, which makes India a better comparison. Now understand this thing, IMF has also projected कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा by 2028 and it is likely that India may become a developed nation by 2047 as per our goal of विकसित भारत. ठीक है, जो हमने 2047 का गोल रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग we shall be able to achieve that goal by 2047. Let's now talk about what actually this fourth largest economy means. India, which is likely to be following US, China and Germany, after that India, how will it actually surpass, or does this number of growth actually determine the development which is underlying the growth? Because Indian economy जब हम समझते हैं UPSC perspective में, it actually does not fix or narrow down itself to growth only. It basically talks about development more. Why? Because all our financial year or 5-year plans, जितने भी हमारे थे 5-year plans, वो सारे के सारे जितने भी आप देख लो उनमें एक कॉमन
आपको गोल मिलेगा, दैट वाज द गोल ऑफ डेवलपमेंट, which talks about education, which talks about healthcare, which talks about standard of living, which talks about decreasing the poverty, which talks about increasing the income of people. Now, talking about income, development also, once we calculate the numbers in economy, once we calculate the statistics in economy, we need to understand that these numbers are derived out of all the calculations of the population, demography, उनकी income कितनी है, उनके accounts में कितना आया. But remember that all of this data collection and collation has a drawback. That is one, कि क्या ये data correct है, दूसरा इसको collect कैसे किया गया है, उसके बाद ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है, इज इट एक्चुअली द सर्वे, ये सर्वे पूरे नेशन की हुई है या इस सर्वे का सैंपल साइज कितना है. These are the drawbacks behind data per se. But yes, after that, there are some more drawbacks to GDP calculations itself. What are these drawbacks? Like, अगर आप देखो, GDP actually provides us an incomplete picture of development, not of growth. Growth की terms में GDP is providing us a term that yes, we are growing in a certain direction. But in that perspective also, you need to remember there are some parts where GDP also lacks, that is defense expenditure, environmental destruction, which are the new domains of economic calculations and statistical analysis of numbers. Leaving that aside, this GDP, which provides us an incomplete picture of development, basically leaves behind the numbers of living standards, health, education, income distribution. कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लोकल लेवल पे हुई है, लोग एक्चुअल में कितना डेवलप हुए हैं. These are some parts, these are some points which GDP cannot calculate because it is basically a number of statistics. These are qualitative in nature, not quantitative. You cannot quantify these things. That is the basic drawback. Now, second, that is when we compare GDP at international level, or when we calculate GDP at domestic level, it does not take care of one important critical aspect, that is the household chores. जो हमारी और आपकी माँ काम करती है घर में, household chores, जो household workers काम करते हैं, except the maids जिनको आप पे करते हो, उनको छोड़ के जो बाकी household activities है, unpaid work है, जिसको हम care economy में डाल सकते हैं, उस care economy को calculate नहीं करता है GDP. ठीक है, अगर हम उसको भी कैलकुलेट करने लग गए तो हमारे जो नंबर्स हैं वो और ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकते हैं. मोस्टली हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को अगर हमने फैक्टर इन कर लिया तो. नाउ अगेन, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज नंबर्स, यू ऑल नो दैट जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ये ग्रोथ के पीछे एक पूरी लैडर होती है. पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके ब्यूरोक्रेटिक administration and all the bureaucracy is behind all of these numbers, that how these numbers are getting calculated. Not only calculated, this growth के पीछे पूरी schemes, government of India की schemes, bureaucratic implementation of these schemes, all of that is behind it. Now the credit of all of this growth goes to whom? Goes to usually the parties in power. ठीक है, that is why across the countries, चाहे वो इंडिया हो, वो जापान हो, वो यूएस हो, these numbers are being politicized. Now, comparing this, these are the limitations of GDP. Further, we need to understand how this GDP number is actually compared at international level. GDP comparison के दो तरीके हैं. सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम जितना भी हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उसको रुपीज में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? डॉलर्स में. बिकॉज यूएस इज लार्जली एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल लेवल एज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी. ठीक है, नाउ इट इज एक्सेप्टेड बाय कंट्रीज, इट इज नॉट इंटरनेशनल करेंसी. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. दो चीजें हमारे पास कंपैरिजन के लिए, जीडीपी के कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो चीजें. One is the market exchange rate, another is the purchasing power parity. Now understand it more in a more, I can say, detailed manner. Let's understand it in a rough slate. ठीक है, it would be simple.
सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जीडीपी of a country like India in rupees once converted into dollars, there is a problem in this conversion. अब ये प्रॉब्लम क्या है कि आप इस कन्वर्जन के टाइम पे कौन सा प्राइस लोगे। ये प्राइस इधर मार्केट डिटरमाइंड होगा और इट शुड बी एक्चुअली कि डोमेस्टिक लेवल पे कितनी ग्रोथ है, डोमेस्टिक लेवल पे क्या प्राइसेस है, इन्फ्लेशन एंड जो डॉलर की सप्लाई एंड डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके हिसाब से जो प्राइस सेट किया गया है, इज इट दैट और इट इज एक्चुअल प्राइस। लाइक मैं आपको बताऊं, दिस मार्केट एक्सचेंज रेट बेसिकली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड परचेजिंग पावर पैरिटी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। डॉलर की बात करें तो अगर आप बहुत सिंपल वे में समझो, if you compare the two economies, for example the economy of US and economy of India, अगर US में एक कमरे का रेंट या एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट का रेंट $4,000 है, तो उसी सेम फुल्ली फर्निश्ड या अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड, सेम क्वालिटीज सेम फैसिलिटीज वाले अपार्टमेंट का रेंट इंडिया में $70,000 है, विच इज अराउंड $824। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग दीज टू, it means that actually $4,000 are equal to 70,000 rupees. बहुत सिंपल सी चीज है। Now comparing these two is basically on a particular set of basket of goods or basket of services. इस basket of services या basket of goods के comparison को हम purchasing power parity बोलते हैं। That how much actually does the rupee hold the value, जिस वैल्यू को लेके आप परचेज कर सकते हो। द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी वॉज वंस आस्क्ड बाय यूपीएससी। दिस परचेजिंग पावर डिफाइंस दैट व्हाट इज एक्चुअली द नंबर ऑन विच यू कंपेयर द टू इकोनॉमीज। ठीक है, ऑन विच यू कंपेयर द टू करेंसीज। के डॉलर, एक डॉलर अगर इंडिया में एक बर्गर खरीद सकता है और अगर ये डॉलर यूएस में एक बर्गर खरीद सकता है, तो इंडिया में यही बर्गर आपको 50 रुपीज का पड़ेगा, विच मीन्स दैट $1 is equal to ₹50. But if you talk about the international level prices or international prices, so this dollar is around 85 rupees now. This is the market exchange rate and this is the purchasing power parity rate. So in this comparison of market exchange rate and purchasing power parity, what we do basically is we keep a basket of goods. कुछ goods को select करते हैं, for example कुछ यूटिलिटी के गुड्स, एजुकेशन फीस, अपार्टमेंट्स का रेंट, हाउसिंग का रेंट, नॉर्मल हेयर कट अगर आपको लेना है तो उस सर्विस का रेंट। नाउ अब ये सारी चीजों को कंपेयर करते हैं डॉलर और रुपी के कंपैरिजन में, देन ओनली वी डिराइव अ नंबर ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। व्हाई डू वी डू दिस? इन ऑर्डर टू नो दैट व्हाट एक्चुअल numbers should be. ठीक है, it is said in philosophy that what ought to be and what is, that is basically the difference between price and value. Now comparing the two economies at international level is comparative analysis, and इस comparative analysis को देखते हुए इंडिया in 2009 became the third largest economy as per the purchasing power parity rates. ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना तो तभी यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। बट एज पर द मार्केट एक्सचेंज रेट इंडिया वाज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट करंटली इट होल्ड्स द पोजीशन ऑफ फिफ्थ एंड इट्स लाइकली टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025, दैट इज एज पर द आईएमएफ प्रोजेक्शंस। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, मार्केट एक्सचेंज रेट के चैलेंजेस क्या क्या है? एज यू ऑल नो, मार्केट एक्सचेंज रेट काम कैसे करती है? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द मार्केट डिटरमाइंड रेट्स। आप आज की डेट में ये रिमोट खरीदने जाओगे तो इस रिमोट का मार्केट में कितना वैल्यू है, क्या प्राइस है मार्केट में, वैसे ही डॉलर का अभी मार्केट में क्या प्राइस है, उस प्राइस के बेसिस पे जब आप इकोनॉमीज को
कंपेयर करते हो, दैट इज मार्केट एक्सचेंज रेट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वोलेटिलिटी। व्हाट इज वोलेटाइल इन मार्केट? डॉलर की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ गई, डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ गई, उतना ही डॉलर का प्राइस बढ़ेगा। जितना डॉलर का प्राइस बढ़ेगा उतना हमें ये डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी आएगी दैट वेदर दिस डॉलर इज एक्चुअली वैल्यूड एट दैट रेट और नॉट। वन थिंग, बिकॉज इट इज हाईली वोलेटाइल इन नेचर। सेकेंड, परचेसिंग पावर की अगर आप बात करो तो दैट आई सेड कि डोमेस्टिक इकोनॉमी का परचेसिंग पावर डिफाइन करता है बहुत सारी चीजें। क्या आपका इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है, आपकी कंट्री अगर मिडिल इनकम कंट्री है और वहां पे पोवर्टी बहुत ज्यादा है, द पुअरर द कंट्री इज द इन्फ्लेशन इज हायर, द इन्फ्लेशन रेट्स आर हायर। जितनी ज्यादा पुअर कंट्री उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट्स आर हायर। नाउ जब आप मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करते हो तो उस टाइम पे दो चीजें कैलकुलेट नहीं की जाती है। वन इज व्हाट? द नॉन ट्रेडेड गुड्स which are cheaper in developing economies, which are not traded at international level। वो गुड्स जो ट्रेड ही नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोई ऐसा गुड बनता है जैसे जूट बैग्स बनते हैं, अगर ये ट्रेड ही नहीं हो रहे हैं, अगर ये जा ही नहीं रहे इंटरनेशनल मार्केट में और वहां से नहीं आ रहे हैं, तो इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे दो इकोनॉमीज के बीच में? तो दीज गुड्स आर एक्सेप्टेड। सेकेंड, द रेमिटांसेस, वो रेमिटांसेस जो हमारे लोग बाहर कमा के यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ के लोग बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, these remittances are what? They are ignored। That is the limitation of market exchange rate। ठीक है, मार्केट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती है हमें। सेकंड, परचेसिंग पावर पैरिटी के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं, जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी को डिस्कस करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली टॉक्स अबाउट द एक्चुअल परचेसिंग पावर ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, एक्चुअल परचेसिंग पावर क्या है कि अगर आपको आटा खरीदना है तो आपको 10 रुपए में कितना आटा मिलेगा। वही आटा अगर आपको यूएस में खरीदना है या इंडिया में खरीदना है सेम क्वालिटी का, तो आप एक्चुअल में कितना स्पेंड कर रहे हो वो आटा खरीदने के लिए। दैट इज द रियल, इट डज प्रोवाइड कंपैरेटिवली अ बेटर और मोर रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, सो इट द हायर एस्टिमेट्स दिस परचेसिंग पावर पैरिटी कन्वर्जन raises the GDP estimates for developing countries। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर सस्ता है, कम पैसे पे लेबर काम कर लेता है, इसीलिए वहां का परचेसिंग पावर के हिसाब से नंबर्स इन्फ्लेट होंगे। दिस इज ड्यू टू द रिलेटिवली लोअर प्राइसेस दैन डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया की रैंक की बात करें एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इंडिया हैज बीन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सिंस 2009। 16 साल हो गए हमें एंड वी स्टिल आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग द पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ इंडिया बिकमिंग मोर टुवर्ड्स और इंडिया रेजिंग इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वंस वी कंपेयर दीज टू पैरामीटर्स, मार्केट एक्सचेंज रेट एंड परचेसिंग पावर पैरिटी, जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते टाइम हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लानी होगी। जैसे परचेसिंग पावर पैरिटी के मेथड के हिसाब से दिस मेथड ऑफर्स बेटर जीडीपी साइज कंपैरिजन। एज आई सेड दैट इज द बेटर जीडीपी मेथड। क्यों? बिकॉज इट इज नियर रियल नंबर्स। नेक्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारे यहाँ है, यहाँ की कैलकुलेशंस हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, हमें इस इनफॉर्मल सेक्टर में और ज्यादा डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस पे काम करना होगा। Countries like India having large informal sector, as I can tell you that जितना भी हमारा कैजुअल वर्कर है, वर्कफोर्स, कैजुअल वर्कफोर्स, out of this 76% of the workforce is in agriculture and 70% of the workforce is in 70% of the workforce is in construction। ठीक है, now understand that this workforce is somehow not included in the net of surveys। clear? further we have unpaid female workers also जो जीडीपी नंबर्स में नहीं आ रही है, तो वहां पे हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, वहां पे जीडीपी कैलकुलेशंस को बढ़ाना होगा। yes, the inferences out of these numbers should not be took लाइटली, और ये गलत इन्फ्रेंसेस नहीं लेनी है। जो सी साइड में हमें इन्फ्रेंसेस पूछी जाती है वो इन्फ्रेंस गलत नहीं लेनी है। लाइक
यहां पे जो चीजें मेंशन है दैट पुअर कंट्रीज कैन हैव इन्फ्लेटेड जीडीपी नंबर्स. व्हाई? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द लोअर वेजेस एंड प्राइसेस. लो प्राइसेस, लो वेजेस की वजह से अदरवाइज यहां के जो जीडीपी नंबर्स है दे कुड बी इन्फ्लेटेड इन नेचर. ठीक है. और जब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि 2015 में जब हमने रिफॉर्म्स लेके आए थे, 2015 के जो रिफॉर्म्स थे, 2015 में हमने क्या किया, जो एसएनए 2008 दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डबल अकाउंटिंग, डबल साइडेड अकाउंटिंग, इन विच वी एक्चुअली कैलकुलेट एंड हम दोनों साइड्स को अपने जर्नल्स में, अपनी लेजर्स में रिकॉर्ड करते हैं. वी रिकॉर्ड बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड. दैट स्टैंडर्ड्स वेर अडॉप्टेड. और वो अडॉप्ट किस लिए किए गए थे? एंड वन मोर थिंग वाज अडॉप्टेड दैट वी विल कैलकुलेट आवर जीडीपी बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट, और यू कैन से मार्केट वैल्यूज, मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस के जो नंबर्स है, इस नंबर पे हम अपनी जीडीपी की कैलकुलेशंस रिलीज करेंगे, नॉट ऑन द कांस्टेंट प्राइस. करंट प्राइसेस के बेसिस पे जीडीपी आएगा. नाउ आज की डेट में हमारा जो जीडीपी के नंबर्स है दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस. ठीक है, और करंट प्राइसेस. क्लियर यहां तक? नाउ व्हाट इल्यूजन डज दिस क्रिएट? इज इट एक्चुअली एन इल्यूजन दैट जो ये नंबर्स हमें बात कर रहे हैं, इसकी वजह से हम should we go into this illusion that yes, India is growing and we will grow automatically, or should we work on the developmental part of it? Because as I said that real per capita income, ठीक है, और per capita income of India, अगर हम per capita income की बात करें तो that is showing us a different picture. The picture which I am talking about is somewhat like this. ठीक है, दैट इंडिया और यूएसए की बात करें तो इंडिया और यूएसए का जो जीडीपी है, यूएसए जीडीपी वाज अप्रोक्सीमेटली 7.5 टाइम्स एज पर मार्केट एक्सचेंज रेट इन 2024 एंड 1.8 टाइम्स एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी. ठीक है, बट वहीं पे अगर आप बात करें तो 16 साल हो गए हमें परचेजिंग पावर पैरिटी पे रहते हुए, किस पोजीशन पे? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली पोजीशन पे. अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आईएलओ की बात करें, तो इसकी एक रिपोर्ट आती है, इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, विच टॉक्स अबाउट द लेबर, दैट हमारे यहाँ जो लेबर है इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ वेज विच इज लेस देन द मिनिमम वेज. फर्दर जो मैंने दो नंबर्स आपको बोले, 76 एंड 70% ऑफ द लेबर इज इन सम डिफरेंट, इज इन व्हाट, इज इन कैजुअल लेबर, इज इन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है. नाउ पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, तो एज पर कैपिटा जीडीपी आर नंबर्स स्टैंड एट $2,711. इतनी इनकम थी हमारी 2024 में, विच स्टूड आईएमएफ के अकॉर्डिंग, हमारी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, हमारी जो कंट्री है इट वाज रैंक्ड इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है. वहीं पे अगर बात करें पर कैपिटा जीडीपी की, तो श्रीलंका एंड भूटान दे हैव जीडीपी per capita GDP which is better than India. But do you think that these numbers downgrade India, or do you think that these numbers are regressive for India? The story behind these numbers is population. ठीक है. Total GDP divided by the population gives us the number of per capita income or per capita GDP. पर कैपिटा जीडीपी. ठीक है. अब श्रीलंका और भूटान की पॉपुलेशन हमसे कम है, जिसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है. दिस नंबर डज नॉट टॉक अबाउट बेसिकली दैट आर वी पुअर और आर वी एक्चुअली we can say that we are not growing actually. No, that this number should not be taken into illusion. दोनों नंबर्स, ना कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ना ये वाला नंबर दैट आर इकोनॉमी इज रैंक्ड इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. दोनों नंबर्स की एक डिफरेंट स्टोरी है और दोनों नंबर्स के पीछे की कहानी अलग अलग है. फर्स्ट, एज पर मार्केट एक्सचेंज रेट्स इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रो. लाइक अगर आप देखो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में इंडिया हैज inflated, or it is the numbers which are showed as per the projections of IMF,
these are not inflated in nature. The numbers are real in nature. Why? Because the calculations of GDP as per MER are of that nature. ठीक है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो हर जगह वही हो रहा है. द कंपैरिजन इज ऑन नंबर्स. सेकंड, दिस नंबर, the total GDP has to be divided by the population, and India being the one of the largest population, one of the countries with largest population, the number is divided accordingly. ठीक है, so the illusion of big economy or small economy should be avoided. Rather, we should focus on the methodologies. Why? Because UPSC itself focused on that thing. That is what UPSC asked. ठीक है. Next, the methodologies. Next, 1991 की बात करें तो इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज बेटर देन वियतनाम, बट आज की बात करें तो आर पर कैपिटा इनकम इज लेसर देन वियतनाम. व्हाई सो? अगेन द नंबर्स आर बेस्ड ऑन द जीडीपी नंबर्स एंड द पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 127 as per the per capita GDP based on market exchange rate and 144th as per the purchasing power parity. ठीक है, अब आप इस चीज को भी समझो that does this actually the fourth largest economy create a big economy illusion? That is a question which is to be sidelined. ठीक है, big economy का यहाँ पे illusion नहीं है. The illusion is about that how India can calculate its numbers in a better manner. That is what has been suggested by multiple committees and commissions. ठीक है, clear. Now, one more thing which we need to understand, that large population की वजह से per capita GDP and global rank जो हमारी यहाँ पे डिस्कस की जा रही है as per capita GDP, these ranks talk about the actual development. These ranks talk about the standard of living. So how should India basically pursue the goals of increasing the standard of living of its citizens? That is to be linked with the sustainable development goals. Are we able to achieve all of these goals by 2030? ठीक है, that is the question which I will leave to you. Because UPSC is again going to focus on the metrics of growth and development both. ठीक है, these metrics have to be studied and have to be analyzed with the lens of UPSC. That is how we conclude this video, and I'll provide you a question for means, and that question you will answer it and submit it. ठीक है, clear? Now, beyond GDP, what else do we need? We need true well-being of the citizens. The GDP size has little to do with the people's well-being, because GDP is not a number of development. As I said again, it's a number which talks about the development of the growth of the economy. Social progress, it is better to compare the indicators of social progress. Again, you need to remember what are the indicators of social progress, like Human Development Index, Multi-Dimensional Poverty Index, which all are being released by नीति आयोग. तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है. Quality of life, as I said, Sustainable Development Goals पे फोकस करना है. What are the I can say way ahead, or what else should India learn from all of these projections and all of the discussion which is going in news? That GDP ranking depends on the methodology which is used with market exchange or purchasing power parity, but they might have different perspectives. Therefore, we need to focus on the holistic part of it. That is the developmental part, which encompasses growth and development, which encompasses the whole well-being, the inclusive growth. The social and human development indicators should be focused on. ठीक है? Therefore, the future focus should be to improve the quality of life. With this, we conclude today's discussion. But before that, do attempt this question for your upcoming mains. ठीक है? That India's growth and development metrics need reforms in this post-pandemic era to achieve the objectives of Viksit Bharat by 2047. Comment. This question talks about
all the things, that is the metrics of growth and development, how India can achieve these by 2047. You need to write this answer in 150 words. This answer holds 10 marks. People who submit this answer, the best answer would be discussed in the next video. Thank you. Have a good day ahead. Jai Hind.